Hello viewers, welcome to the second part of Poet and Pancake. In my previous video, I told you about Pancake, which is a brand name of makeup material. I told you about the Gemini Studio. I told you about the Robert Clive. I told you about the national integration in Gemini Studio and Office Boy as well. In today's video, I'm going to tell you about Subbu. Who is Subbu and what is very important in his character? If you want to know, stay with me till the end of this video. Yes, don't forget to subscribe my channel, Vibrating D Himta. In those days, I walked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time that they were called French windows. उन दिनों मैं एक छोटे कक्ष में काम करता था जिसकी दोनों दिशाओं में ऐसी खिड़कियां थी जो फर्श से शुरू होती थी और बालकनी में खुलती थी। एंड इट वाज द टाइम, ये वो समय था जब मैं ये नहीं जानता था कि इन्हें फ्रेंच खिड़कियां कहते हैं या फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. मुझे सारा दिन डेस्क पर बैठे न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों को फाड़ते हुए देखकर ज्यादातर लोग यह सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। Means I was doing something useless work there in that cubicle. It is likely that the boss thought likewise too. So anyone who felt I should be given some occupations would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. ये संभव था कि मालिक भी यही सोचता था। सो जो भी यह महसूस करता कि मुझे कोई काम करने को दिया जाए, वो भद्दे ढंग से मेरे कक्ष में आता और एक लंबा भाषण दे डालता। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. मेकअप डिपार्टमेंट के चपरासी ने यह निर्णय लिया कि मुझे इस बात का ज्ञान कराया जाए कि किस प्रकार एक महान साहित्यिक प्रतिभा को व्यर्थ किया जा रहा है एक ऐसे विभाग में जो सिर्फ नाइयों, बार्बर और पथभ्रष्ट के योग्य है। Soon I was praying for crowd shooting all the time. जल्दी ही मैं भीड़ को फिल्माने की कामना करता। Nothing short of it could save me from his epics. इससे कम कोई अन्य बात मुझे उसके महाकाव्यों से नहीं बचा सकती थी। In all instances of frustrations, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kotamangalam Subbu. निराशा के सभी इंस्टांसेस में उदाहरण में आप हमेशा पाओगे कि गुस्सा एक ही व्यक्ति पर सीधा या छुपा हुआ निर्दिष्ट होता था। मेकअप डिपार्टमेंट के इस व्यक्ति को ये पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी सारी विपत्तियां, अपमान, निरादर और उपेक्षा एक ही व्यक्ति के कारण था। That was Kotamangalam Subbu. Subbu was the number 2 at the Gemini Studio. Subbu Gemini Studio में number 2 था. He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. हमारे चपरासी की तुलना में फिल्मों में उसे इससे अधिक encouraging, उत्साहजनक ओपनिंग या अवसर प्राप्त नहीं हो सकते थे। On the contrary, इसके विपरीत he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no formally established film producing companies or studios. इसके विपरीत उसे अधिक अनिश्चित और कठिन समयों का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जब उसने फिल्मों में अपना जीवन आरंभ किया उस समय फिल्म बनाने वाली कोई भी कंपनी या स्टूडियो इतना मजबूती से स्थापित नहीं था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ तक कि एजुकेशंस के मामले में भी, स्पेशली खास तौर पर फॉर्मल औपचारिक एजुकेशंस में, सुब्बू couldn't have had an appreciable lead over our boy. सुब्बू को हमारे चपरासी पर पर्याप्त अग्रता प्राप्त
नहीं थी. Okay, but by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations and people. परंतु ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के कारण निस्संदेह यह एक गुण था. उसे अधिक धनी, प्रभावशाली परिस्थितियों और लोगों में इससे अधिक प्रदर्शन नहीं मिल सकता था. He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film. किसी असफल फिल्म में काम करने के बाद भी प्रत्येक समय उसे प्रसन्न दिखाई देने की योग्यता प्राप्त थी. He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. उसके पास किसी न किसी के लिए काम रहता था. वह स्वयं कोई काम नहीं कर सकता था, परंतु उसकी वफादारी की भावना ने उसे अपने मुखिया या प्रिंसिपल के साथ कंप्लीटली घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और अपनी समूची क्रिएटिविटी या रचनात्मक योग्यता को अपने प्रिंसिपल के लाभ के लिए प्रयोग करने में सफल बना दिया था. He was tailor made for films. वह पूरी तरह से फिल्मों के लिए बना हुआ था. Here was a man who could be inspired when commanded. Dear viewers, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जब चाहो प्रेरित किया जा सकता था. The rat fights the tigress under water. चूहा शेरनी के साथ पानी के नीचे लड़ाई करता है एंड किल हर, उसे मार देता है, बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स, परंतु उसके बच्चों पर उसे दया आती है एंड टेंड्स देम लविंगली, और बड़े प्यार से उनका पालन करता है. आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन. मुझे नहीं मालूम कि ये सीन कैसे फिल्माया जाए, कैसे किया जाए. द प्रोड्यूसर वुड से, सुब्बू को प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे नहीं मालूम ये सीन कैसे किया जाए. And Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. यहाँ पर सुब्बू चूहे द्वारा अपने शिकार की संतान पर प्यार बरसाने की या उड़ेलने की 4 विधियां बता देता है. Good, but I'm not sure it is effective enough, the producer would say. And in a minute, Subbu would come out with 14 more alternatives. प्रोड्यूसर वुड से, यहाँ पे पहली बात है कि प्रोड्यूसर से कहता है कि भी बहुत अच्छे थे ये 4 तरीके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कारगर है. निर्माता कहता है, और एक ही मिनट में सुब्बू अन्य 14 अल्टरनेटिव विकल्पों के साथ आ जाता है. फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. Subbu जैसे आदमी के पास होने के कारण फिल्में बनाना आवश्यक ही सरल रहा होगा, और सरल भी था. और यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति था जो जेमिनी स्टूडियो को उसके सुनहरे वर्षों में दिशा और स्पष्टता देता था, that was Subbu. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. कवि के रूप में सुब्बू की एक अलग आइडेंटिटी थी, पहचान थी, और यद्यपि वो अधिक कॉम्प्लेक्स और उच्चतर रूपों के योग्य था, फिर भी जानबूझकर वो अपने रिटन वर्क को या काव्यों को साधारण जनता को संबोधित करता था. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक सफलताओं को ढक लिया था और उनके महत्व को कम कर दिया था. उसके आलोचक ऐसा महसूस करते थे, ऐसा वो कहते थे. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thillana Mohanambal, with dozens of very deftly etched characters. Dear viewers,
उसने कई वास्तविक कहानियों की रचना कविता में लोक रेफरेन, राइट टेक और लोक शैली के साथ की थी। और उसने एक प्रसिद्ध उपन्यास थिल्लाना मोहनम माई भी लिखा था, जिसमें दर्जनों कैरेक्टर बड़ी ही दक्षता पूर्व उकेरित किए थे। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th centuries. उसने आरंभिक 20वीं शताब्दी की देवदासियों के भाव और व्यवहार को सफलतापूर्वक फिर से ताज़ा कर दिया था, उसमें प्राण डाल दिए थे। He was an amazing actor. वह एक आश्चर्यजनक अभिनेता था, एक्टर था। He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main player. कि उसने कभी भी मुख्य भूमिका की आकांक्षा नहीं की, परंतु जो सहायक भूमिका उसने की किसी भी फिल्म में, उसने उसे मुख्य पात्रों से बेहतर किया। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of the near and far relations and acquaintances. जो भी उसे मिला उसने उससे सच्चा प्यार किया, और उसका घर दर्जनों निकट और दूर के संबंधियों और परिचित व्यक्तियों का स्थायी निवास बन गया। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. इस बात से सचेत होना कि वो इतने सारे लोगों को भोजन और सहारा प्रदान कर रहा है, सुब्बू के नेचर के विपरीत प्रतीत होता था। Such a charitable and improvident man, उस जैसा दानवीर और अपव्ययी व्यक्ति, and yet he had enemies, फिर भी उसके शत्रु थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss, or was it his general demeanor that resembled a sycophant's, or his readiness to say nice things about everything? Yes. क्या ये शत्रु इसलिए थे क्योंकि वो अपने स्वामी के इतने निकट और उसके साथ इतना घनिष्ठ प्रतीत होता था, या क्या यह उसके व्यवहार आचरण के कारण था जो किसी चापलूस के समान लगता था? और क्या इस कारण से शत्रु थे क्योंकि उसका प्रत्येक बात के विषय में अच्छा कहना? इन एनी केस, चाहे कुछ भी हो, there was this man in the makeup department who would waste the direct things for Subbu. मेकअप डिपार्टमेंट में, बनाव श्रृंगार विभाग में, वह एक आदमी था जो सुब्बू के लिए अति अनिवार्य वस्तुओं की ही इच्छा करता था। एक्चुअली ही थिंक्स इल अबाउट सुब्बू, क्योंकि वो सुब्बू को अपने करियर प्रोग्रेशंस में एक कांटा मानता था, एक बाधा मानता था।